Hello everyone, welcome to Tempest of Learning. So I'm here with a very nice poem from ICSE Board Class 10th, Haunted Houses by H.W. Longfellow, means Henry Wadsworth Longfellow, and he is an American iconic poet who encouraged people of America and reminded them to be connected to their roots by his writing. So his writing is very inspiring and very effective. So one of his creation is this haunted houses also, and this is very nice poem. इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो भी घर हैं, जो भी houses हैं, they are haunted by the people who were living there, who are died now, they are not anymore existing in this world. So इसको कैसे बोला गया है, कैसे उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में हम अभी यहाँ पे देखेंगे स्टेंजा वाइज। इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, इसकी मीनिंग को समझेंगे। और क्योंकि ये पोएम बहुत ही बड़ा है, इसमें 10 स्टेंजाज हैं, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू ओनली 4 स्टेंजाज एंड नेक्स्ट 4 और द रिमेनिंग पार्ट विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। All houses wherein men have lived and died are haunted houses. Through the open doors, the harmless phantoms on their errands glide, with feet that make no sound upon the floors. So here the poet wants to say, or here the poet states that all houses are haunted, wherein men have lived, जहाँ पे लोग रह चुके हैं, and now they are died, they are no more. Yes, so the house belong to the people who are no more in this world. Yes, so that is why this house, these all houses are what? Haunted because आगे देखते हैं, through the open doors the harmless phantoms on their errands glide with feet that make no sound. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट की, यहाँ पे जो हाउसेज हैं, these all houses are what? These all houses are haunted where people were living but now they are no more. और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि from the open door, yes, here we can see the haunted houses is used as the metaphor. yes, यहाँ पे जो haunted house जो है वो use किया गया है as a figure of speech, we can say the poetic device metaphor, and this indicates the, what is that? That indelible influence, okay, which is left by the people who lived here and how they have departed from this world. तो यहाँ पे उन लोगों का एक्सप्रेशन है, उन लोगों का इमोशन है, उन लोगों की फीलिंग है और उन लोगों का इन्फ्लुएंस है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। और उसको कैसे देखा रहा है, दिखाया जा रहा है थ्रू द ओपन डोर्स, जो वो डोर्स है, एंड द हार्मलेस फैंटम्स। सो फैंटम्स मीन्स द घोस्ट, द सोल, that soul can live, that move, or the ghost can move. So these are the souls or these are the ghosts who are harmless. ये किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। They are on their errands glides. Errands glides means they are doing their daily routine work. They अपना अपना वो काम कर रहे हैं. Errands means the work they have to do. So errands glide smoothly they are doing. They have the routine, जैसे हमारी routine होती है, उनकी भी routine है, and they are doing their work with feet. They are walking because they are phantoms, so they are walking with feet that make no sound upon the floor. But when we walk, we make the sound of our slippers or the shoes, or when we are barefoot, then also we make some sound. But here the phantom who are walking here around us everywhere, yes, from the open door, they are coming and going and doing their work. They are coming, but their feet do not make any kind of sound. तो आई बिलीव सबको ये समझ में आ रही होगी, यानी कि जितने भी हाउसेस हैं वो क्या है, वो हॉन्टेड है, क्योंकि कभी ना कभी वहां पे कोई रहता था और वो अब नहीं है। बट दे आर नॉट देयर फॉर द एग्जिस्टिंग पीपल। जो पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल है, दे कैन नॉट सी देम, दे कैन नॉट फील देम, बट यस दे आर एग्जिस्टिंग अराउंड देम। कैसे, इसको और हम अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो है, देखते हैं हम इसको।
Yes. So here we can see we met them at the doorway, on the stair, along the passages they come and go. Impalpable impression on the air, a sense of something moving to and fro. So here what is saying कि यहाँ पे अगर हम इसको देखें थोड़ा सा और we met them, हम लोग जो घर में रहते हैं अब, yes we met them, हम लोग उनसे मिलते हैं, but we are not feeling, we met them द डोरवे, हम लोग डोरवे पे उनसे मिल लेते हैं, ऑन द स्टेयर और स्टेयर्स पे मिल लेते हैं, अलोंग द पैसेजेस या पैसेजेस से मिल लेते हैं, कहीं भी घर में अगर हम चलते फिरते उन लोगों से मिल लेते हैं. दे कम एंड गो, वो आते हैं और जाते हैं. दे कम एंड गो. Impalpable impression. So impalpable means that is not felt. The impression, they come with the impression which are not felt on the air. हमें उसका वातावरण में, अपने एटमॉस्फेयर में कोई भी इस तरह का इम्प्रेशन नहीं दिखाई देता है, ना समझ में आता है. हमें ये फील ही नहीं होता है कि हमारे तरफ, हमारे घर में हमारे अलावा भी कोई मौजूद है जिसको ये घर पहले बिलोंग करता था. मे बी हमारे दादाजी या उनके दादाजी उनका घर है और जिस जिस ये घर उनको बिलोंग करता है. दे नाउ ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस हाउस. अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो. पर कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी ऐसी आहट, कभी ऐसा लगता है कि somebody इज देयर एंड हियर एंड देयर. कैसे टू एंड फ्रो, कभी आते जाते ऐसा फील हो जाता है. और ये आप सब लोगों ने फील किया होगा कि कभी लगता है कोई पीछे खड़ा है या कोई वहां से पास किया. तो यहाँ पे पोएट ये बताना चाहते हैं कि ये हम फील तो करते हैं बट दे हैव द इम्पैलेपेबल इम्प्रेशन. उनका जो इम्प्रेशन है वो नॉट, दैट कैन नॉट बी फेल्ट. यस, उसको एकदम आसानी से हम फील नहीं कर सकते हैं. यस, बट वी कैन सेंस समटाइम दैट समथिंग इज मूविंग टू एंड फ्रो. कभी इधर उधर कुछ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. सो आई बिलीव सबको ये समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट चेंज हमारा बहुत बता रहा है, देयर आर मोर गेस्ट at table than the host invited. The illuminated hall is thronged with quiet, inoffensive ghosts, as silent as the picture on the wall. So here it is saying that it is said कि डाइनिंग टेबल पे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं. We like the host is inviting the people for dinner or something. Yes, the hall is very illuminated, पूरा लाइट है हॉल में. और तो जितने लोगों को होस्ट ने इनवाइट किया है उससे ज्यादा यहाँ पे लोग हैं. यस, सो देयर आर मोर गेस्ट एट टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड. जितने गेस्ट को होस्ट ने इनवाइट किया है उससे ज्यादा गेस्ट टेबल के पास है. मे बी हम उनको देख नहीं पा रहे हैं बट दे आर देयर. द हॉल इज वेरी मच इन इल्यूमिनेटेड. यस, वेरी लाइटनिंग है सब जगह, पूरा चकाचौंध है. और उसमें बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जिनको इनवाइट ही नहीं किया गया है बट दे आर देयर बिकॉज द हाउस बिलोंग टू देम. यस, इज स्ट्रॉन्ग विथ क्वाइट. एंड यहाँ पे इज स्ट्रॉन्ग विथ क्वाइट. और यहाँ पे क्या, स्ट्रॉन्ग मीन्स भीड़, क्राउडेड है. पूरा हॉल बहुत क्राउडेड है. 4 गेस्ट को बुलाया है पर वहां पे 10 लोग हैं. यस, सो द हॉल इज स्ट्रॉन्ग विथ क्वाइट इन ऑफेंसिव घोस्ट. सो द हॉल जो है पूरा क्राउडेड है. विथ whom? With the quiet inoffensive, because they are harmless, they have no offense. लोग they are inoffensive, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं. इस तरह के घोष से पूरा हॉल क्या है, भरा हुआ है. एंड दे आर वेरी मच साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल. और ये इतने साइलेंट हैं कि इनको हम लोग फील नहीं कर सकते हैं, जैसे कि दीवार पे टंगी हुई पिक्चर. तो ये ऐसा लग रहा है कि अगर हम जहाँ बैठे हैं हमारे अलावा भी इस घर में या जहां भी हम रहते हैं वहां पे कुछ और लोग हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं. बट यस, दे आर हार्मलेस, दे आर इनऑफेंसिव. यस, सो पोएट वांट्स टू से हियर. नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा इज, अब पोएट क्या कह रहे हैं, द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी, नो हियर द साउंड आई हियर, he but perceives what is while unto me all that has been is visible and clear. So here the poet is saying that the stranger, जो लोग आए हैं मेरे फायर साइड पे जो लोग बैठे हुए हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, they cannot see,
उन लोगों को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट आई द फॉर्म्स आई सी, बट मुझे दिखाई देता है। इट मीन्स द पोएट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ घोस्ट, यानी कि वो घोस्ट है। यहाँ पे कहने का यही यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है कि वो भी पोएट जो है वो भी एक घोस्ट की तरह है, तभी उनको वो लोग भी दिखाई दे रहे हैं। सो दे आर ही ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। यस, बिकॉज द स्ट्रेंजर, जो भी स्ट्रेंजर हैं, जो भी लोग इस वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, उनको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। द फॉर्म्स आई सी, जो मैं देख पाता हूँ, नॉर हियर द साउंड आई हियर, उनको वो साउंड भी सुनाई नहीं दे रहा है जो मुझे सुनाई देता है। ही बट परसीव, पर मुझे ये फील होता है, ये मुझे ही सिर्फ फील होता है, बाकी लोगों को नहीं होता है। ऑल दैट हैज बीन विजिबल एंड क्लियर, और मुझे सब कुछ एकदम अच्छे से विजिबल है और क्लियर है, जो कि और लोगों को क्लियर और विजिबल नहीं है। सो ये हमारा बहुत ही शॉर्ट में मैंने ये समझाया। अगर आप लोग इसको करना चाहें तो इसकी एक समरी का भी वीडियो मैं डाल दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें ऑल लाइक 6 स्टेंजास आर लेफ्ट, वो 6 स्टेंजास को लेके मैं आऊंगी और उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगर यहाँ तक किसी को किसी चीज में डाउट है तो वो जरूर पूछेंगे, और जो भी वर्ड अगर डिफिकल्ट लग रहा है उसके बारे में पूछेंगे। ओके, तो आई बिलीव कि सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर समझ आया तो वंस अगेन आई एम सेइंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड goodbye, and I'll come back with the next video.